بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بعد از حمد و سلام، سامعین محترم، شب قدر کے حوالے سے چند ایک معروضات آج آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر وہ عظمتوں والی رات، وہ رفعتوں والی، برکتوں والی اور وہ سعادت والی رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیصلہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دی ہے۔ تاہم اس رات کے متعلق متعدد احادیث مبارکہ، جیسا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے 10 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک اعتکاف فرمایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ میرا جو خیمہ تھا اس کو کاٹ دیا جائے۔ تاہم پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا گیا یا رسول اللہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوبارہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم ارشاد فرمایا کہ دوبارہ سے خیمہ لگا دیا جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کر کے اس شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس کے حوالے سے یہ کنفرم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 27ویں رات ہے یا 25ویں رات ہے، 26ویں رات ہے یا پھر اس کی 23ویں، 22ویں، 29ویں رات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے آخری عشرے کی ان تاک راتوں کے متعلق، یا رسول اللہ آخری عشرے کی اس شب قدر کے حوالے سے مجھے آگاہ فرما دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے اس صحابی رسول کو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ انہوں نے پھر سے اصرار کیا، عرض کرتے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پھر سے عرض کیا، اور پھر سے جب سے اصرار کیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے انتہائی زیادہ اللہ کے نبی غضبناک ہوئے اور یہی فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ وحدہ لا شریک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عمر غالباً اور ایک دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بھی ہیں کہ جن سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ 27ویں رات کو آتی ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، نیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم آخری عشرے کی 10 راتوں میں اس شب قدر کو تلاش فرمایا کرتے تھے۔ تو ان روایات سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری عشرے کے اندر اس شب قدر کو تلاش فرماتے، اور وہ بھی بہت ساری متعدد روایات جو ہیں وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، 29ویں رات کے متعلق ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان کی متعلق خصوصی طور پر فرمایا۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرہ آپ ہی محبوب کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फिदा का उम्मी वाबी, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मुझे बता दीजिए अगर मैं इस रात को पालूं तो फिर इस रात को मैं कौन सा अमल करूं, कौन सा ऐसा वजीफ़ा है कि जो इस रात को मैं पढ़ूं। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा अगर तुम रात को पालो और इस रात की इबादत को तुम समझ जाओ और इस रात को तुम्हें मालूम हो जाए कि वाक़अतन आज ही की रात ये शब कदर की रात है, तो आयशा आप यूँ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ है जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा कसीरन कसीरा आपको सिखाई है। तो इस दुआ को शब कदर के मुताल्लिक़ पढ़ना एक तो सैयदा आयशा की सुन्नत है और महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार भी है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जिन आए बैयिना को हमने तिलावत किया उनमें वाज़ेह तौर पर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल फरमाया है लैलतुल क़द्र की रात को। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीनों से बेहतर है तो इसका मतलब ये है कि जो शख्स इस रात को इबादत करता है, इस रात को अल्लाह वहदहू शरीक की हम्द व सना करता है, उसके सामने सरब सुजूद होता है, उस रब के सामने उसकी किबरियाई बयान करता है, उसकी तस्बीहात बयान करता है, उसकी तहलीलात बयान करता है, उसके सामने नवाफिल अदा करता है, तो गोया वो शख्स एक रात को इबादत करता है तो उसको अल्लाह वहदहू शरीक 1000 महीनों से ज़्यादा का सवाब अता फरमाते हैं। अब ये इस आय मुबारक के मुताल्लिक़ ये है कि एक इसका मफ़हूम और इसके शान नज़ूल यूँ भी है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया कि जो बनी इसराइल का था और उस शख्स का मामूल ये था कि 1000 महीने तक वो मुसलसल दिन को रोज़ा रखता रहा और रात को अल्लाह ताला की तस्बीहात करता रहा। पूरी रात क़ियामुल लैल के अंदर उसकी गुजरी, पूरी रात इबादत के अंदर गुजारता है और सुबह उठ के रोज़ा रख लेता है और उस रोज़े की हालत में ही वो जिहाद के अंदर मुतमक्किन होता है, जिहाद करता है अल्लाह की राह में, जिहाद के अलम को बुलंद करके कलमा इलाह की तरफ अल्लाह की वहदानियत के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए उसकी तलवार को अपने हाथ में उठाकर पूरा 1000 महीना तक यूँ इबादत करता है और फिर उसको शहीद कर दिया जाता है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको रस्सियों से बांधकर उसके जिस्म के एक एक उज़्व को काट दिया जाता है। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के तज़किरा खैर को सुना तो अल्लाह के नबी चूँकि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, वो हरीस नबी अपनी उम्मत के लिए नेकी की तगोदो और नेकी को चाहने वाला वो महबूब, अपनी उम्मत की नेकियों में इजाफा चाहने वाला वो नबी, उसके दिल में ये ख्याल गुजरा कि या अल्लाह उस उम्मत के लोग मेरी उम्मत से आमाल में बढ़ जाएंगे। तो रब करीम की तरफ से हुक्म हुआ, ए महबूब तेरी उम्मत का कोई शख्स अगर एक रात को इबादत करेगा तो उस एक रात की इबादत का अल्लाह इसको इतना सवाब अता फरमाएगा, इतना सवाब अता फरमाएगा कि अल्लाह वहदहू शरीक 1000 महीनों से बढ़कर इसको इतना सवाब अता फरमा देगा। यानी कि बनी इसराइल के उस शख्स की 1000 महीने की इबादत एक तरफ और उम्मत मुहम्मदिया का इजाज़ इसकी ये इबादत एक तरफ, तो फिर भी अल्लाह वहदहू शरीक इस उम्मत मुहम्मदिया को उसका सवाब उससे कहीं बढ़कर अता फरमाएगा। और इससे भी बढ़कर और कितनी खुशबख्ती की बात है और कितनी नसीबे की बात है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब का कुरान कहते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइका, आसमान से मलाइका उनका नुज़ूल होता है, आसमान से मलाइका का नुज़ूल होता है, वो सारी रात रूए ज़मीं पर उतरते रहते हैं और सारी रात जब रूए ज़मीं पर उतरते हैं तो इस रूए ज़मीं पर उतरकर
उन लोगों की ज़ियारत करते हैं, उन लोगों की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं कि जो लोग अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अया कर रहे होते हैं, जो लोग अपनी रात को इबादत के अंदर गुजार रहे होते हैं, जो लोग क़ियामुल लैल की उस कैफियत को बयान कर रहे होते हैं, तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते सुबह तक जनाब जिब्रील के ज़रिए और जनाब जिब्रील के साथ जिब्रील की माइयत में आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, वो अल्लाह के हुक्म से नाज़िल होते हैं। और फिर होता क्या है, जब फजर होती है जनाब जिब्रील उनको साथ लेते हैं और लेकर हर उस शख्स के घर में जाते हैं, हर उस शख्स के उस जीने पे जाते हैं, हर उस मस्जिद की वो जीनत बनते हैं। जनाब जिब्रील भी होते हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी होते हैं। फरिश्तों का सरदार अपना पूरा गिरोह लेकर उस शख्स को जाकर सलामी पेश करता है। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, वो पूरी रात उन पर सलामतियाँ जारी रहती हैं और फरिश्ते उनके लिए, नूरानी फरिश्ते अल्लाह के, उनके लिए सलामती की दुआएं करते रहते हैं, उन पर सलामतियों का नज़ूल होता रहता है। और जनाब जिब्रील जाकर उससे मुसाफा भी करते हैं और जनाब जिब्रील उसको सलाम भी पेश करते हैं। तो अल्लाह का नूरानी फरिश्ता जनाब जिब्रील जिसको सलाम पेश करे, वो यही लैलतुल क़द्र की रात है। और इसी रात को और बहुत सारी और रमज़ान मुबारक की रातें हैं कि जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लिए कुछ मखसूस चीज़ें हैं और उन मखसूस चीज़ों में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ ये भी इरशाद फरमाई है कि जो रोज़ादार होता है वो रोज़ा रखता है तो उसके रोज़ा रखने की वजह से मेरा अल्लाह उस पर इतना करम फरमाता है, इतना करम फरमाता है। वो करीम रब, वो अज़मतों वाला रब इतना करम फरमाता है कि आसमान को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, उन आसमान पे उठाने वाले फरिश्तों को यकम रमज़ान से ही ये कह दिया जाता है, आज से मेरी तस्बीहात को छोड़ दो, आज से मेरी तहलीलात को छोड़ दो, आज से मेरी हम्द व सना को छोड़ दो, आज से मेरी इबादत को छोड़ दो। अल्लाह तेरी इबादतों को छोड़ देंगे तो फिर करेंगे क्या? या अल्लाह तूने तो हमें बनाया है इबादत के लिए, अल्लाह इबादत भी ना करें तो फिर क्या करें? तो मेरे रब की तरफ से हुक्म होता है, ए फरिश्तों, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी ये है, आज के बाद तुम्हारा काम ये है कि उम्मत मुहम्मदिया का जो शख्स रोज़ादार है, आज से लेकर अफ्तार तक, यानी यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक, वो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। तो ये वो अज़ीम महीना है, इस महीने में वो रात भी है। अल्लाह करीम से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस रात की इबादत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मज़हबी जोश व ख़रोश के साथ इस रात को मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावैया अनिल हम्दुलिल्लाह।